ठीक डन भाई वेट लॉस का चाहिए ना साथ में आप साथ में The best I got. Remember that. I wish these guys would really get this now. The more they drink, the better I look. Well, you're the one who was a flight, so that's good. Oh, yeah. My wife just said, I'm just a flight. What's the beat you're giving me, bro? One, two, check. I just see my sound like I am. One, two. One, two. जहाँ जहाँ तूफा है तेरा. Okay. थोड़ी देर में मैं भी चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा ईज आउट हो जाओ सर. आपको परफॉर्म करते हुए हम फाइनली आज देख. मुझे नहीं लगता तालियां आज रुकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए. आइए सर प्लीज. We have Yashashree as a special guest joining us. Khushbu couldn't join us today, unfortunately, but she will be with us on this song and on YouTube. Can I just get the keyboard? Here we go. We'll do the unplugged version now. This is just for you guys. I really love this song. I really love the composition. ये पहली बार है जो मैंने we got Harmeet coming to the hey, go make some noise. You guys anyway will hear the full version on YouTube, obviously, and all the platforms. But this is a live unplugged version. First time me and my bro are doing this.
पगला दिल कहीं लगता नहीं जब से मिला है तू कि मेरी बंजारगी आवारगी का एक ठिकाना तू ये पगला दिल कहीं लगता नहीं जब से मिला है कि मेरी बंजारगी आवारगी की आंखों से तेरा शर्माना ओ जवा तूफान में तेरा भीग जाना की आंखों से तेरा शर्माना. Give it up for me, brothers. We have some amazing guys on stage. We got this young, handsome Munda over here on the left. Hey, you knew we were talking about you now. We've got the guy who's written the song. And we didn't. Oh. Harshit over here. There's no. We got co-composer. This is what I love about Me Brothers. They're also bringing out many other composers. There's not many music directors that have done that. So even after giving so many hits, I'll let you take over. Yeah. I am glad. Please give it up for him, guys. Come on. So one day that's my dream. किसी दिन capable हो जाए तो. So guys, इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकता था. सरज आज आप प्लीज विराजमान हो जाइए, आराम से बैठिए. And सबसे पहले मैं किसी से भी सवाल पूछने के पहले मैं एक चीज बोलूँगा. You know what kind of a selfish person I am, right? कि मैंने आते ही आपको सीधा पहले परफॉर्म कर रहे हैं, बाद में अपना जॉब कर लेंगे, आराम से देख लेंगे. बट ये बहुत से आपकी तरफ सवाल आते रहेंगे. आशुतोष, आपका पूरा नाम आशुतोष है और आप इतनी बड़ी फैमिली से हेल करते हैं. आपके दादाजी के ज़माने से हम जानते हैं कि वो इतने बड़ी इंस्टीट्यूशन के सबसे पहले म्यूजिकल टीचर थे. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? हाउ Sorry? In Shantinikethan, not in Jindal. Like in Shantinikethan, he was the first. He was the first. हाँ, right. और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी भी वहाँ पे मतलब वहाँ से हेल करते वहाँ के बहुत ही ज़्यादा चहीते थे. और प्लस आपके कजिन ग्रैंडफादर किशोर दा, इतना सारा परफॉर्मेंस प्रेशर था सर आप पे. आपने कैसे दिल्ली 6 में इतना अच्छा बैंगर हम सबके सामने ला कर रख दिया सर, ये मैं जानना चाहूँगा. Thank you so much. क्या कैसे आपने वो मतलब आपके मन में प्रोसेस क्या था उस टाइम पे, क्या थॉट प्रोसेस था? वो टाइम पे मैं यूके में था. I was just working in a normal job, and by chance I got a chance to meet obviously Mr. A. Rahman, right? All our favorite music directors. So वो time पे 2008, I got the chance and he invited me to India, and I came to India for the first time as an adult, and I sang the song. And after that, 2 साल के लिए I wasn't doing anything, and all of a sudden the Bollywood door opened, and I started like वो time पे मैं कभी मुंबई में कभी नहीं आया था. So yeah, this opened, and one of the first studios I came to was Me Brothers Studio. Wow, guys, give it up for this. I think this statement of yours deserves a good clap. Actually, people don't know many things because so much information is going out. हम बहुत promotions करते हैं for our songs, but background information, something like if you guys know many hit songs जो Bollywood में है from different music directors are also recorded at the Meet Brothers Studio. I know so many new music directors who have come from working from the Meet Brothers Studio. So it's a very musical hub. Many artists are coming from there, launched from there. The big songs they have because of these guys, and they're very young, so it's very you think, Are, they're so young, but they've done so much for many people. So thank you guys for doing that. We have a new actor here. We have a new young fresh person with us, and I think we should talk about him something. Yeah, and when we actually talk about fresh faces, Manmeet sir, आप दोनों को मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा. हर्षित जी आपके सामने जब आए, आपके मन में जय सर आपके सामने आए, आपके मन में सबसे पहले वो सवाल क्या आया कि मतलब when you launch a new face, एक थॉट होता है ना कि मतलब ये चीज़ है जिसकी वजह से मैं हिट कर गया भाई, इस बंदे को तो मैं लॉन्च करके रहा हूँ.
देखिए लाइफ में सबसे पहली चीज़ होती है एनर्जी। अगर यहाँ जितने लोग आए हैं, इफ दे वर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, हो सकता है यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। ये दोनों जो हमारे स्टूडियो आए थे उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। दे वर वेरी परसिस्टेंट कि नहीं सर आपके साथ काम करना है। यू नो देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस वर्ल्ड बट ओनली पीपल आर वेरी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट मेक इट देयर। तो जय भाई ने तो हमें छोड़ा ही नहीं। तो भाई मुझे पता लग चुका है कि आप लोग सबके साथ काम करते हो, तो मेरे पास तो बहुत टैलेंट भर भर के हुआ है। तो देन आई थिंक ही डिडंट गिव अप, दैट वाज द नंबर वन। सी गाना आज सबको पसंद आ रहा है, लेकिन उसके पीछे लाइक वेरी वेल एज सेड व्हाट इज द सीक्रेट। द सीक्रेट इज इस भाई ने बहुत मेहनत करी, इन लोगों ने इसको बहुत ट्रस्ट करा, एंड यू नो दिस इज लाइक अ टीम वर्क। एंड देन फाइनली वी हैव अ सुपरस्टार भाई हमारा ये हाँ नया चेहरा नहीं भाई, बहुत बड़ा चेहरा है। हाँ, हमारा फेवरेट स्टार है हमारा यू नो टीवी का और वेब का। सो आई विल लेट हिम टॉक कि क्या मजा आया शूटिंग में, और बार मीत ब्रदर्स के साथ क्यों काम कर रहे हो भाई? कौन नहीं करना चाहेगा, ऑनेस्टली बताइए। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी एंड लॉट ऑफ वेब, बट म्यूजिक वीडियोस की जर्नी मेरी एक साल पहले स्टार्ट हुई है। आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू म्यूजिक वीडियोस, बट जब मुझे पता चला कि मीत ब्रोस का एक गाना है व्हिच वाज अप्रोच टू मी, व्हिच वाज द लास्ट सॉन्ग दैट आई डिड विद देम, थोड़ी सांस, I felt that wow, okay, this is like a big pinnacle for me. Okay, music industry में NB brothers, I mean, Meet Bros and NB Music is like a pinnacle. और उनके साथ अगर आप कर रहे हो as an actor मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि I am going a level up, you know, working with them. So honestly, and when I got the second song, it was like Sone Pe Suhaga. So I have no words. I was just really excited to work with both these brothers of mine. Right, that's yes. I would like to add that Nish, of course we know that you know ये काफ़ी काम किया है इन्होंने, और बहुत नोन फेस है, बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है इनकी, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। और मोस्टली जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो बहुत रेयर होता है कि मान ये बात को एक्सेप्ट करें कि अगर कोई नई, जैसे इसमें जो फीचर है इनके साथ ऑपोजिट जो लड़की हैं यशिता, शी इज़ न्यू कमर, ये पहली बार कैमरा फेस किया उन्होंने। तो मोस्टली लोग ऐसे मना करते हैं कि नहीं हम न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करेंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंस खुद में चाहिए होता है कि आप किसी लड़की को बोले हाँ ठीक है मैं करूँगा तेरे साथ। उसके लिए पहले वी ऑल नीड टू क्लैप फॉर दिस बॉय। Yes, exactly. जी। You know, I was a newcomer once. We all have had our first day in the industry. And there were few actors and few people who were not very fair to me, you know, in the beginning, because I was a newcomer. And I got hurt in my life once. मुझे आज भी याद है वो दिन, I will not talk about that, but I felt very bad as a newcomer कि यार ऐसा newcomer को ये कोई मेरा मतलब पाप थोड़ी हो गया। So I made it a point कि whenever in life any newcomer comes and works with me, I will make sure I will give them an environment which is so comfortable for them to grow. गलती करनी है करो, कोई बात नहीं, हमने भी किया तुम भी करो, हम साथ में करेंगे, you learn and we all grow together. That's my philosophy. That's क्या बात है। और सर हमने ये भी मतलब उड़ती अफवाह आती है, रिसर्च मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो आ जाता मतलब कहीं ना कहीं से। अब वो उड़ती हुई अफवाह आगे कान में मुझे बोल गई कि हर्षद साहब जो है हमारे, ये कमाल के सिंगर हैं। मैंने इनको भी गाते हुए सुना है, जबकि ये बहुत इंट्रोवर्ट है, मैं ये भी बताता हूँ आप सबको, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। We can see that. तो मैं चाहूँगा जैसे कि हर एक म्यूजिशियन, हर एक कंपोजर होता है, उसकी लैंग्वेज होती है म्यूजिक। आप अपनी लैंग्वेज में, म्यूजिक की लैंग्वेज में 4 शब्द हमें अगर सुना दे तो बहुत मजा आ जाए। ये लीजिए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मनमीत सर, हरमीत सर, राजीव जी भाई, इतना अच्छा गाना बनाया एंड मुझे उसका पार्ट बनाया। सो इट्स अ बिग डे फॉर मी। सो सर लोग सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से, सो या इट्स अ बिग डे फॉर मी। Meanwhile, we would like to also, अब हम लोगों ने आर्टिस्टों ने बहुत फुटेज खा ली है। अब the team behind राजीव जी, can you please come? Where is राजीव शर्मा जी? राजीव सर उनके अच्छा वो नीचे गए हुए हैं, वो वहाँ चिली चिकन खा रहे हैं और बाद में सर आज तक लगता था कि सिर्फ आप सबसे ज़्यादा ह्यूमरस हो सर, आपका ह्यूमर बहुत पीछे दिख रहा था। आज पता नहीं क्यों मैं लकी इनफ हूँ, मेरा निकनेम लकी है एक्चुअली। आज दिख रहा है मुझे कि मतलब मैं कितना लकी हूँ। Well, that's Rajiv Sharma, our partner and music label head. करता धरता पूरा जवान तूफान की पूरी रिलीज से लेके प्लानिंग इज ऑल हिम. सो हर्षित इज सो बिफोर हर्षित सिंह आई हैव टू टेल यू कि ये गाना जब हम बना रहे थे और थ्रू आउट हम हर्षित की आवाज में सुनते रहे,
तो हर्षित की आवाज़ इतनी कानों में बैठ गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि किसी और से गवाएं, क्या करें। बहुत मन था कि हर्षित की आवाज़ भी रखें, बट देन वी रियलाइज दैट आई थिंक एक क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एज अ कंपोजर ऑल्सो हर्षित नीड्स टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। जय जो एक्चुअली पूरा मास्टरमाइंड है इस प्रोजेक्ट का, दिस इज ऑल हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस बॉय। हम लोग सब इसके असिस्टेंट्स हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, आई एम टेलिंग यू टुडे। एंड इतना कॉन्फिडेंस था तो हमने बोला नहीं यार कि लेट्स ब्रिंग अ वॉइस जिसको दुनिया पसंद करती है, फॉलो करती है, ताकि पहले गाना ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके बाद अगले थर्ड फोर्थ गाने आप ही गाना। तो थैंकफुली ऐश किंग से बहुत टाइम से काम करना चाह रहे थे, एंड लकीली ही when we called him, he said, okay, fine, let's do it. We were very happy, Ash on board. So we thought we are home now. But Harshit has a beautiful voice, and I would love you to sing something. Come on, guys, give it up. Thank you so Harshit much. Srivastava. जवान तूफान में तेरा मिलने आना, झुकी आंखों से तेरा शर्माना। ओ जवान तूफान में तेरा मिलने आना, झुकी आंखों से तेरा शर्माना। यूं कुछ ना भुला पाया हूँ, लेकिन खास है दिल को तेरा मुस्कुराना। ओ जवान तूफान में तेरा भीग जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सबसे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। चिली चिकन जो भी खाओ बट तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बट सर कमाल का कंपोजिशन है। ऐसा कंपोजिशन मैंने शायद ही कहीं पे देखा हो या सुना हो, क्योंकि सर मैं भी म्यूजिकली हल्का सा एक्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज एज जेंजीज हम आपको हम सबको थैंक मतलब दिल से करना चाहेंगे, क्योंकि आज की म्यूजिक सेंस को अगर किसी ने बरकरार रखा है तो वो दो दिग्गज यहाँ पर तो हैं ही, जिन्होंने जन्म दिया है उस मल्टी जॉनरा चीज को। क्योंकि हमने बहुत सालों से देखा है सर कि आप हमेशा अपना जॉनरा स्विच बहुत करते हैं, लेकिन हर एक जॉनरा में जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो जैक ऑफ ऑल मास्टर एंड नन होते हैं। हाउ डज इट फील टू बी द मास्टर ऑफ ऑल द जॉनरास? बिकॉज आई रियली वांट टू नो सर, स्विचिंग जॉनरास इज नॉट रियली इजी फॉर एनी म्यूजिशियन, और आप इतना इजीली कर लेते हो जैसे कि मतलब जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। ठीक है सुमित, बस इतने में हो जाता है। बट मैं चाहूंगा कि See, it's like आप खाने में वैरायटी चाहते हो ना, बिरयानी भी खाते हो, है ना, अपना बटर चिकन भी खाते हो, हर चीज़ चाहते हो। तो लाइफ में आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी चीज़ में, यू शुड हैव अ वर्सेटैलिटी, वैरायटी, एंड यू शुड मास्टर इट। इट्स नॉट अबाउट कि अरे मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को प्यार करता हूँ, नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी प्यार करता हूँ, मैं कलीग्स को भी प्यार करता हूँ। हर जगह कपड़ों में भी वैरायटी मिलती तो व्हाई स्टिक टू वन जॉनर? जब दुनिया में हर एक चीज़ में आप वैरायटी अप्लाई करते हो, क्या तू तो गर्लफ्रेंड्स में भी करता है, करेक्ट? सर एक पटवा दो फिर वैरायटी। So, very simple answer. We like Manmeet and me since boarding school. We have always sung all kind of songs. R.D. Burman के सारे गाने गाते थे और पंचम का हर तरीके का गाना बनाते थे। तो we learned कि भाई एक तरीके के गाने नहीं बनाने, हर गाने। Also इसमें क्या होता है ना कि genres of music क्या होता है? Romantic, sad, emotional, party, dance, club. तो as people ये सारे इमोशंस हमारे अंदर है। किसी दिन आप बहुत रोमांटिक फील करते हो, किसी दिन आपका दिल दुख जाता है, किसी दिन आप बहुत लकी फील करते हो, करेक्ट? सो किसी दिन आपकी ऐश हो रही होती है, ये अपनी अपनी किस्मत वाली बात है। सो किसी दिन आपको लगता है कि आज मेरी जय है, राइट? सो इट्स अबाउट एवरीबडी हैज दोज इमोशंस। तो हम लोग जिस दिन हमारा मूड फंकी होता है उस दिन पार्टी सॉन्ग बनता है, जिस दिन थोड़ा रोमांटिक होता है उस दिन थोड़ा रोमांस सॉन्ग बन जाता है, जिस दिन मेरे को बीवी के साथ झगड़ा हो रहा होता है उस दिन सैड सॉन्ग बन जाता है। भाई तो इट्स वेरी सिंपल, जो मूड है वैसा गाना बनेगा, बाकी अपने आप। We believe in our emotions, आप कह रहे हैं। और यहाँ पे जब हम स्विच करने की बात करते हैं, जब हम जॉनरा स्विच करने की बात करते हैं, मैं एक और बताता हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा रिसर्च थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे कहीं से तो पता चला है कि यहाँ जो भाई साहब बैठा है हमारे, ये भाई साहब कभी मीडिया के उस तरफ हुआ करते थे, ये आप सबके बीच से आए हैं।
जी, he is a media person. In fact, even he is a media persona. But आप तो in depth media में थे. आज जय सर, हाँ अभी भी हैं. मैं एक्चुअली अभी भी हूँ मीडिया जी, 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 जी. मतलब आई एम ऑल्सो प्रेस कार्ड होल्डर. मैं खुद एक प्रेस वाला हूँ. जी जी जी. मीन एक्चुअली मैं कोई वोट्स के लिए अपील तो नहीं कर रहा हूँ जैसे अलग अलग आईपीज में करते हैं, बट आपका ही बंदा हूँ तो जस्ट मेक श्योर दैट दिस सॉन्ग इज बीन प्रमोटेड एंड सेलिब्रेटेड वेल, बिकॉज आप क्या बात, क्या बात. लिरिसिस्ट बना है, आप में से एक जन निकल के एज अ कंपोजर भी लॉन्च हो रहा है. मतलब क्या बात. जैसे हरमीत जस्ट सेड ना कि मैं बहुत पीछे पड़ा था, वो सच बात है क्योंकि वो आदत भी मुझे मीडिया से ही पड़ी है. तो मैं पीछे पड़ जाता था इनके और इतने फॉलोअप लेता था, मुझे लगता था एक टाइम पे तो ब्लॉक ही कर देंगे मुझे. वैसे ये दोनों भाइयों का एक कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा ये है कि हरमीत इज लाइक अ बडी, इज लाइक अ फ्रेंड. इनके साथ है ना कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हो. आप इनको ये भी बता सकते हो कि हरमीत सुनो ना एक बूफर हो गया, कुछ संभाल लेते हैं ना साथ में, वो संभाल लेंगे. वो सेम वो हम उम्र बन जाते हैं. लेकिन बड़ा भाई जो है ना वो एक्चुअली में वो बड़ा भाई का स्टेचर लेके है. उनके साथ बात करने के पहले ना ऐसे आईने के सामने 2-4 बार रिहर्सल करनी पड़ती है कि अब ये लेके जा रहे हैं, अब ये लेके जा रहे हैं. और वो अचानक से गूगली भी फेंकते हैं बीच में. जैसे आई रिमेम्बर हम ये जब गाना लिख एंड अचानक से उनको जो धुन जैसे एक जो लाइन है ना, ये बगला दे गई, नाउ दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी जो अचानक से इन्होंने एडिशन कर दी थी बीच में. और मुझे अचानक से बोलते हैं हाँ जी लिखो. एंड मैं नया नया लिरिसिस्ट, अब मैं क्या लिखूँ वैसे. नो आदत नहीं है ऐसे कि सामने कोई कीबोर्ड लेके एंड दैट टू दीज आइकॉनिक फिगर्स एंड समबडी इज आस्किंग मी कि चलो अभी लिखो. तो हाथ तो कांप रहे थे, मैंने फोन हाथ मिला तो फोन भी वाइब्रेट हो रहा है ऐसे करके कि अब मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या करके. वैसे लकीली दैट टाइम आल्सो हरमीत वाज देयर विद मी एंड दैट्स व्हेन उन्होंने इशारा दिया, जान की वाली लाइन थी ना, वो डालना तो ना हाँ चलो क्यों मिल रहा है. तो somehow you know I made sure that you know Harmeet has always been somebody जो मुझे you know is with me throughout. कि कुछ भी होगा ना फिक्र मत कर लेंगे. When it comes to this newcomers वाला you know zone also, like you know we've been talking about this. मैंने काफ़ी दरवाजे खटखटाए. Honestly speaking, मतलब today I'm just talking about it. मैंने काफ़ी दरवाजे खटखटाए इतने सालों में. मीडिया लाइन में होके भी दरवाजे बंद हुए हैं. That's when I meet this gentleman somewhere you know. एंड हरमीत को मैं मिलता हूँ अचानक से एंड वो अपने जोन में थे, अपने फ्रेंड्स के साथ है. चाहते तो बोल सकते थे यार ये सही टाइम या सही जगह नहीं है मेरे से बात करने के लिए, आप बाद में आना. उन्होंने फिर भी एक नए बंदे को सुना एंड तुरंत मनमीत के पास मुझे भी लेके गए वहाँ पे. हमारी चीज़ें पेशेंटली सुनी. मतलब हमने शायद इनको इतना पकाया होगा लेकिन फिर भी पेशेंटली सुनी बातें और कहा कि ये गाना जो है जवां तूफान ये कर सकते हैं आपके साथ. हमको तो लगा कि शायद दिल रखने के लिए बोले, बट एक्चुअली में दे वर डूइंग देयर होमवर्क एंड दे जस्ट डिडंट वांटेड अस टू, ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट नहीं हो जाए या कुछ, बट उनको पता था कि ज़्यादा भी मोटिवेट नहीं होना चाहिए वरना मेहनत कम कर देंगे शायद. वैसे तो हमारा भी जो स्पार्क है वो बरकरार उनकी वजह से रहा. वैसे था एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू यू नो बोथ ऑफ यू ऑनेस्टली. वरना मुझे लगता है मैं आज तक शायद दरवाजे खटखटा रहा होता और भी बहुत सारे. एंड सेम इज विद यू नो हर्षित ऑल्सो. हर्षित कम्स फ्रॉम इंदौर से 750 किलोमीटर दूर सतना से. यस आपको शायद याद भी नहीं होगा, मतलब आपको तो पता भी नहीं होगा. आज से 2013 में हर्षित आपके ही स्टूडियो के बाहर एक कॉलेज स्टूडेंट के जैसा आया था. उसने वहाँ से एक फोटो खींची थी, सेल्फी. उस जमाने में एक फोटो खींची थी और स्नीक इन किया था किसी से पूछ के कि मुझे एक बार स्टूडियो इनका देखने मिलेगा क्या. और आप तभी थे भी नहीं, वो स्टूडियो देख के चला गया था. इज मैनिफेस्टिंग इन दैट डे. वन डे विल वर्क. Wow. That's a big thing for me. That's manifesting in the purest form actually. है ना. एक मैंने निकनेम रख रखा है बस. तो now moving forward with one of the very closest questions that I had for today. It is for Ash sir. सर मुझे सच बात बताना, टी आमन के टाइम पे आपका दिमाग में चल के आ रहा था एग्जैक्टली? वो टाइम पे I think I was very new then to the Exactly. industry. I want to keep on being new. I was No, you won't age, I want to sir. look as good as him. I went through a breakup that time, Right. and it was like my first major breakup of my life. So many things were happening over time there. Or yeah, and then when I was recording the song, Sunny was recording me, and Sunny's like, Ash, you know you need to smile. It's a happy song. I said, there's nothing to smile about. So then he said, just तो सिर्फ स्माइल करके सिंग.
Gao Ye Rani. Then I started smiling at that point. And then that became my style. But it's so funny because when this song came, Java Tufan, see, first of all, jab call mila, I came straight to the studio. I was in another session and I said, wow, finally these guys are, I know them for years. And finally they called me, I said, right, I'm coming right now. I went there. Thank you, I'm thanking you for that. Yeah, you said that. And there's always somebody in a studio, in a situation, who vouches for you. Who said, well, and that's so important. That's so important. Even TMO, I sang because Arijit Singh, he recommended me for the song. He said, this guy has to sing this song. What time I was not in India. I was not here. He said, this guy sing the song. So, just like that, you have that, and that means so much to me. Koi infiltrate kiya, the Meat Brothers project. He said, yeah,